Question number 53. Siddhivinayak company manufactures two products P and Q. Both the products pass through the company's two departments A and B. दो product हैं, दो department हैं. The market demand for a month is 2,500 units of P and 2,000 units of Q. The company has a normal capacity of 600 hours in department A and 520 hours in department B per month. These are the normal hours available. Normally इतने ही hours हैं हमारे पास. Overtime is acceptable up to 50% of normal hours in each department. So we can work overtime also. Overtime हम कर सकते हैं. 50% of the hours तक restricted रहेगा overtime. मतलब डिपार्टमेंट ए में 300 आवर्स का ओवरटाइम किया जा सकता है, डिपार्टमेंट बी में 260 आवर्स का. डिटेल्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट्स एंड डिपार्टमेंट आर. So for both the products P and Q, we have direct material cost, we have fixed overheads per month. Then for both the departments A and B, we have direct labor time required. P का एक यूनिट बनाने में कितने मिनट लगते हैं इन डिपार्टमेंट A as well as in B. Similarly, Q का एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है इन both the departments. And then दोनों डिपार्टमेंट का wage rate, the normal wage rate as well as the overtime wage rate. If the company is not able to fulfill the order for want of capacity, the balance quantity of products can be sold by buying from a subcontractor who has agreed to supply product P at rupees 18 and Q at 12 rupees per unit. अगर कंपनी अपनी डिमांड फुलफिल करने में कैपेबल नहीं होती है, कैपेसिटी की शॉर्टेज पड़ती है और वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाती है, इन दैट केस वो लोग सब कॉन्ट्रैक्टर से गुड्स खरीद कर बेच सकते हैं एंड सब कॉन्ट्रैक्टर विल सेल देम एट 18 and 12 rupees per unit. Calculate the quantity of each of the products to be manufactured and / or to be subcontracted in the most economical way of fulfilling the market demand. कितना हम बनाएंगे, कितना हम खरीदेंगे किस प्रोडक्ट का. Present a statement showing the total cost involved in your solution above. Total cost इस पे कितना लगेगा, जो भी हमने सिलेक्शन किया, what will be the total cost for this. Now the question seems to be very easy, it is very very complicated. जितना छोटा question है उतना ही ज़्यादा complicated है. There are three things in the question. Either you can produce the product in the normal time, or you can produce product in overtime, or you can buy the product. And there are two products जिनके बारे में हमें decide करना है. एक ही product होता तो हम easily कर लेते हैं. There are two products जिनमें हमें decide करना है किसको normal time में बनाए, किसको overtime में बनाए, या किसको हम कितने units किस product के हम बाहर से सब contract करवाएं. सबसे पहले what we'll have to check is आपको दोनों department के hours दिए हैं which are restricted. So the first thing which we have to see is whether our requirement is more than availability or it is less than availability. दोनों डिपार्टमेंट्स हमारे की फैक्टर है भी या नहीं. ऐसा नहीं कि दोनों में हमें चाहिए सिर्फ 400 आवर्स और अवेलेबल है 500-600 आवर्स. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू चेक वेदर दे आर की फैक्टर्स और नॉट. वी हैव डिपार्टमेंट्स ए एंड बी. Normal hours available for A is 600 and for B is 520. Overtime available 50% बोला है, so that means it is 300 and 260. So total hours available will be 900 and 780. Now let's see for requirement. रिक्वायरमेंट हम चेक करें. सो लेट्स फर्स्ट चेक आउट फॉर पी. टाइम पर यूनिट इन मिनट्स इट्स गिवन एज 6 and 12. एंड पी की हम टोटल क्वांटिटी बना रहे हैं 2500. टाइम फॉर 2500 यूनिट्स अगेन इन मिनट्स. और से इन आज ही हम निकालें. एक यूनिट में 6 मिनट, तो 2500 यूनिट्स के लिए इट विल बी 2500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 250 आवर्स. सिमिलरली इन डिपार्टमेंट बी
we'll have 2500 into 12 divided by 60, that is 500 hours. Correct? This is our requirement for production of product P. पूरी डिमांड अगर फुलफिल करना है तो इतनी रिक्वायरमेंट है, और डिमांड हमें पूरी फुलफिल करना है, इसीलिए बोला है कि अगर नहीं आप फुलफिल कर पा रहे हो तो खरीद के फुलफिल करोगे, पर करना है पूरा. Then let's check for Q. Time required per unit, which is in minutes. 18 minutes and 12 minutes. So time required for 2000 units will be 2000 into 18 upon 60, 600 hours, and 2000 into 12 upon 60, 400 hours. So total requirement आ जाएगी हमारी 850 hours and 900 hours. This is the total requirement. आप ओवर टाइम को मिला के अगर नहीं देखो, केवल नॉर्मल आवर्स देखो, तो नॉर्मल आवर्स में तो दोनों ही प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. वेराज ओवर टाइम को मिला के अगर हम देखें तो बी में तो किसी भी हालत में पॉसिबल ही नहीं है. ए में फिर भी ओवर टाइम करके यू कैन पे एक्स्ट्रा एंड यू कैन प्रोड्यूस, थोड़ा एडिशनल पे करके आपका प्रोडक्शन तो पूरा हो सकता है. बी में तो एनी हाउ एंटायर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, पूरा प्रोडक्शन आप कर ही नहीं सकते हो. दैट मीन्स डिपार्टमेंट बी विल बी द गाइडिंग फैक्टर. डिपार्टमेंट बी के जो आवर्स होंगे वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे. द प्रोडक्ट विच विल गिव अस अ हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट बी और अ हायर सेविंग पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट बी, वी विल गो फॉर इट्स मैन्युफैक्चर फर्स्ट. आया समझ में? So department B will be our limiting factor. Now if we see for both the products P and Q, how much cost we are going to incur for their manufacture, how much cost we are going to incur for their subcontract. तो कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट तो डायरेक्टली हमें दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज 18 रुपीज पर यूनिट एंड 12 रुपीज पर यूनिट. हम अब निकाल रहे हैं सेविंग्स कितनी होंगी हमारी. व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट इज सेविंग्स पर आवर. उसके लिए चाहिए हमें पहले सेविंग्स पर यूनिट. सेविंग्स किसके कंपैरिजन में, अगर हम खरीदें तो कितना पे करना पड़ेगा, बनाएं तो कितना पे करना पड़ेगा. दिस इज द कॉस्ट ऑफ बाय. अगर खरीदते हैं तो इतना पे करना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर अगर हम देखें, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर तो क्या क्या कॉस्ट लग रहा है हमारा. एक तो मटेरियल कॉस्ट है विच इज 10 रुपीज एंड 5 रुपीज पर यूनिट. इसके अलावा लग रहा है हमारा लेबर कॉस्ट, वेजेस, बट वेजेस विल बी चार्ज डिफरेंटली फॉर नॉर्मल आवर्स एज वेल एज फॉर ओवर टाइम आवर्स. मतलब प्रोडक्शन नॉर्मल आवर्स में होगा तो सेविंग कुछ और होगी, प्रोडक्शन ओवर टाइम में होगा तो सेविंग कुछ और होगी. सो लेट्स सी, पहले अगर हम देखें वेजेस, नॉर्मल वेजेस, सिर्फ नॉर्मल आवर्स के वेजेस अगर हम देखें, नॉर्मल आवर्स में होने वाला प्रोडक्शन, तो डिपार्टमेंट ए और बी दोनों में हमें वेजेस पे करना पड़ रहा है. इफ वी आर गोइंग फॉर पी, प्रोडक्शन ऑफ पी, तो पी बनाने के लिए डिपार्टमेंट कॉलम्स और रोज पे ध्यान देना. पी आर प्रोडक्ट्स, ए एंड बी आर डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्ट पी का एक यूनिट बनाने में डिपार्टमेंट ए में लग रहे हैं 6 मिनट, 6 मिनट्स, और डिपार्टमेंट ए का वेज रेट है 10 रुपीज पर आवर. मतलब 6 मिनट के लिए कितना पे करेंगे, कितना, 60, 1 रुपी. This will be 6 into 10 divided by 60, that is 1 rupee.
वैसे ही अगर प्रोडक्ट क्यू का देखें तो प्रोडक्ट क्यू को डिपार्टमेंट ए में बनाने में लगते हैं 18 मिनट्स और 1 घंटे का हम पे करते हैं 10 रुपीज इन डिपार्टमेंट ए, तो 18 मिनट्स का हम कितना पे करेंगे? 18 डिवाइड बाय 60 इंटू 10, दैट इज 3 रुपीज वी विल पे। ये है हमारा कॉस्ट पर यूनिट, वेजेस कॉस्ट पर यूनिट फॉर डिपार्टमेंट ए। वैसे ही डिपार्टमेंट बी का अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट बी में प्रोडक्ट क्यू बनाने के लिए लगते हैं 12 मिनट्स और वेज रेट है 12 रुपीज। इसका मतलब 12 मिनट का वेजेस, 60 मिनट्स का वेजेस इज 12 रुपीज, तो 12 मिनट का कितना होगा? 2.4। सिमिलरली फॉर क्यू अगेन 12 मिनट्स ही लगते हैं, वेज रेट इज ऑल्सो 12 रुपीज, तो ये भी 2.4 ही होगा। सो वी कैन से कॉस्ट टू प्रोड्यूस इन नॉर्मल आवर्स। नॉर्मल आवर्स में अगर हम प्रोड्यूस करने जाएं, और कुछ तो कॉस्ट दिया नहीं है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह, अगर नॉर्मल आवर्स में प्रोड्यूस करने जाते हैं सो द कॉस्ट विल बी 13.4 एंड 10.4 रुपीज। इसका मतलब सेविंग्स पर यूनिट होती है 4.6 एंड 1.6 रुपीज। एक यूनिट अगर हम नॉर्मल आवर में बनाए रादर देन परचेज करने के, तो हम इतना सेव कर पाते हैं। ये क्लियर है? दिस इज सेविंग्स पर यूनिट। हमें डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन सेविंग्स पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट क्यू। आवर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन सेविंग्स पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट क्यू। सेविंग्स पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट क्यू, सॉरी प्रोडक्ट है क्यू, डिपार्टमेंट कौन सा है? बी। डिपार्टमेंट बी के आवर्स, क्योंकि वो हमारा की फैक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी सेविंग्स कितनी होंगी? पी का एक यूनिट बनाने में बी में लगते हैं 12 मिनट, 12 मिनट्स मतलब 12/60 आवर्स, इतने हमें घंटे लगते हैं 12/60, या फिर 0.5 आवर्स लगते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ पी। 0.5 आवर्स में वी आर सेविंग दिस मच, तो 1 घंटे में हम कितना सेव करेंगे? 9.2 रुपीज पर आवर की सेविंग हो जाएगी 9.2 रुपीज। सिमिलरली प्रोडक्ट क्यू को बनाने में हमें लगते हैं इन डिपार्टमेंट बी अगेन 12 मिनट्स ही लगते हैं। यहां पर भी क्यू को बनाने में भी 12 मिनट्स ही लगते हैं। डिपार्टमेंट बी में 12 मिनट्स इज अगेन 0.5 आवर्स। 12 मिनट्स इज 0.5 आवर्स, नो, समथिंग इज रॉन्ग, 0.2 आवर्स, तो ये भी गलत है फिर। We are saving 4.6 for 12 hours, 12 minutes. तो 60 मिनट्स में कितनी सेविंग होगी? 12 मिनट्स में हम इतना सेव कर रहे हैं, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स में कितना सेव करेंगे? कितना होगा ये? 23। सिमिलरली यहाँ पर भी वी आर सेविंग 1.6 इन 12 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में कितना सेव करेंगे? 8 रुपीज। सो अकॉर्डिंगली वी कैन रैंक। नॉर्मल आवर्स में हम कोशिश करेंगे पहला प्रोडक्शन पी का हो, उसके बाद प्रोडक्शन क्यू का हो। नॉर्मल आवर्स में पहली प्रायोरिटी हम देंगे पी के प्रोडक्शन को, उसके बाद हम क्यू में प्रोड्यूस करेंगे। नाउ कमिंग टू ओवर टाइम। ओवर टाइम के केस में एडिशनल वेजेस आपको कितना पे करना पड़ रहा है? इन डिपार्टमेंट ए एंड इन डिपार्टमेंट बी। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन ओवर टाइम में होता है तो इफ द प्रोडक्शन इज डन इन ओवर टाइम, तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? अगर आप पी का एक यूनिट ओवर टाइम में बनाते हो, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग पी का एक यूनिट इन ओवर टाइम, डिपार्टमेंट ए में एक यूनिट बनाने में लगता है
6 मिनट्स, और ओवर टाइम के लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 5 रुपीज। ऑलरेडी 10 रुपीज तो हम यहाँ पर कंसिडर कर चुके हैं 10 रुपीज के हिसाब से। हम अब एक्स्ट्रा लेके सिर्फ उस एक्स्ट्रा को यहां से डिडक्ट कर लेते हैं। अगेन दोबारा से पूरा कैलकुलेट करने की जगह सिर्फ एडिशनल वाला कॉस्ट लेकर और उसको डिडक्ट कर लेते हैं टू गेट द नेट सेविंग्स। ओके, 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है 1 यूनिट पी का बनाने के लिए इन डिपार्टमेंट ए। दैट 5 रुपीज इज फॉर 1 आवर। 1 घंटे का आपको 5 यूनिट लग रहा है, जबकि पी का 1 यूनिट बनाने में लग रहे हैं केवल 6 मिनट। 6 मिनट से रिलेटेड आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? 5 रुपीज यू आर पेइंग फॉर 60 मिनट्स, तो 6 मिनट से रिलेटेड यू आर पेइंग 0.5 रुपीज एक्स्ट्रा। करेक्ट? अगर डिपार्टमेंट ए में ओवर टाइम होता है तो आप इतना एक्स्ट्रा पे करते हो। सिमिलरली अगर क्यू का प्रोडक्शन आप ओवर टाइम में करो, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग क्यू इन ओवर टाइम, क्यू को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 18 मिनट्स लगते हैं। 5 रुपीज एक्स्ट्रा यू आर पेइंग इन डिपार्टमेंट ए फॉर 1 आवर, तो 18 मिनट्स के लिए आप कितना पे करोगे? 1.5 you are going to pay extra। अगर डिपार्टमेंट बी में आपको ओवरटाइम करना पड़ जाए, डिपार्टमेंट ए में नहीं, अभी डिपार्टमेंट बी की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट बी में अगर ओवरटाइम करना पड़े, डिपार्टमेंट बी में आप ओवरटाइम के लिए प्रीमियम दे रहे हो 6 रुपीज पर आवर, 1 घंटे का 6 रुपए। अगर आप प्रोडक्ट क्यू बनाते हो तो आपको डिपार्टमेंट बी में 12 मिनट्स देने पड़ते हैं। 1 घंटे का आप 6 रुपए दे रहे हो, तो 12 मिनट का कितना दोगे? 1.2 रुपीज। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट क्यू, अगेन 1 घंटे का आप 6 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, और क्यू बनाने के लिए भी बी में 12 मिनट्स ही लगते हैं, तो 12 मिनट का आप यहां पर भी 1.2 रुपीज ही दोगे। ये क्लियर है? ये सारे कैलकुलेशंस क्लियर है? ओके, नाउ ऐसा नहीं होगा कि आपके जो दोनों डिपार्टमेंट हैं ए और बी, दोनों की कैपेसिटी एक साथ ही एग्जॉस्ट हो गई और दोनों में एक साथ ही ओवरटाइम शुरू हो गया। होगा क्या? हम प्रोड्यूस करेंगे, पहले कोई एक डिपार्टमेंट की कैपेसिटी एग्जॉस्ट होगी, उसमें ओवरटाइम शुरू होगा, फिर और प्रोड्यूस करते जाएंगे, दूसरे डिपार्टमेंट की भी कैपेसिटी एग्जॉस्ट होगी, तब उसमें भी ओवरटाइम शुरू होगा। आफ्टर दैट वी विल सी कि किसी एक डिपार्टमेंट का ओवरटाइम भी खत्म हो गया, देन वी विल गो फॉर बाइंग। पहले किसी एक डिपार्टमेंट की कैपेसिटी एग्जॉस्ट होगी, फिर दोनों की होगी, मतलब पहले कोई एक ही डिपार्टमेंट ओवरटाइम करेगा, अर्लीएस्ट प्रोडक्शन विल बी इन नॉर्मल टाइम, फिर किसी एक डिपार्टमेंट का ओवरटाइम करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों डिपार्टमेंट का ओवरटाइम करना पड़ेगा, और लास्ट में जो बिल्कुल नहीं हो पाएगा उसके लिए हम सब कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगर दोनों ही डिपार्टमेंट में ओवरटाइम करना पड़ जाए तब भी आपकी कुछ सेविंग्स हो रही है, आप देख सकते हो। इस केस में अगर प्रोडक्ट पी बनाने में आप बाहर से गुड्स खरीदते हो और आप खुद नॉर्मल आवर्स में बनाते हो तो सेविंग होती है 4.6। अगर ओवर टाइम में बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा 1.7 रुपीज इनकर करना पड़ता है। मतलब इवन इफ बोथ द डिपार्टमेंट्स आर डूइंग ओवर टाइम, आपकी कुछ ना कुछ सेविंग हो रही है। 4.6 माइनस दिस 1.7, दैट विल बी योर सेविंग। तो पी के केस में आपको इन एनी केस, चाहे नॉर्मल आवर्स में बना लो या फिर किसी एक डिपार्टमेंट का ओवरटाइम करा लो या दोनों डिपार्टमेंट्स का ओवरटाइम करा लो, पी के केस में हमेशा बाइंग से सस्ता आपको मैन्युफैक्चरिंग ही पड़ेगा। जबकि क्यू के केस में अगर देखें तो नॉर्मल आवर्स में बनाओगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर मान लो डिपार्टमेंट ए में ओवरटाइम हो गया, डिपार्टमेंट ए में ओवरटाइम, तो 1.6 में से 1.5 एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा, अभी भी 0.1 की सेविंग है, अभी भी इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर ए में नहीं, ए की जगह बी में ओवरटाइम पहले हो गया, पहले बी में ओवरटाइम हो गया, तभी भी 1.6 माइनस 1.2, 1.4 की आपकी सेविंग हो रही है। लेकिन अगर दोनों डिपार्टमेंट में साथ में ओवरटाइम हो जाता है तो आप 1.6 का जो सेव कर रहे थे उसके अगेंस्ट में कॉस्ट ऑफ इनकर कर रहे हो 2.7। दोनों डिपार्टमेंट अगर साथ में ओवरटाइम पर पहुंच जाते हैं तो क्यू हमें बनाना ठीक नहीं पड़ता है, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम बाहर से खरीद लें।
ये आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी एक डिपार्टमेंट में ही अगर ओवर टाइम है तो हम बोलेंगे क्यू भी हम खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन अगर दोनों में ही ओवर टाइम हो गया, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मैन्युफैक्चर वी विल गो फॉर बाइंग द प्रोडक्ट क्यू। पी का हम तब भी मैन्युफैक्चर ही ऑप्ट करेंगे, लेकिन क्यू के केस में हम खरीदने पहुंच जाएंगे। ओके और आप ये भी देख सकते हो पी का अगर आप देखो तो 4.6 माइनस 1.7 इट इज स्टिल समथिंग लाइक 2.9 के आसपास है, विच इज मच हायर देन दिस। मतलब पी को अगर आप दोनों डिपार्टमेंट में ओवर टाइम करने के बाद भी बनाते हो तो भी क्यू नॉर्मल टाइम में जितना सेव करके देता है उससे ज्यादा पी सेव करेगा। समझ में आया? दोनों डिपार्टमेंट में ओवर टाइम हो गया, फिर भी आपको पहले पी को प्रेफरेंस देना चाहिए, उसके बाद क्यू को। क्लियर है? सो लेट्स सी सेविंग्स per unit if both departments work overtime। अगर दोनों ही डिपार्टमेंट्स ओवरटाइम करते हैं तो हमें सेविंग कितनी होगी? 4.6 माइनस 1.7 दैट इज 2.9, 1.6 माइनस 2.7 दैट इज negative 1.1। So you'll write a note, product Q will not be manufactured if both departments work overtime, though it can be manufactured if a single department is working overtime। अब हम अपना डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन के अकॉर्डिंगली हमें डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट क्यू, बी दोनों में आवर्स अलॉट करते जाना है। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे पी को बनाए इन द नॉर्मल आवर्स। पी का टोटल डिमांड है 2500 यूनिट्स और 2500 में टाइम लगने वाला है 250 आवर्स। नॉर्मल आवर्स हमारे पास कितने अवेलेबल है फॉर डिपार्टमेंट ए? 600 अवेलेबल है और डिपार्टमेंट बी के नॉर्मल आवर्स 520 अवेलेबल है, उसमें से 500 पूरे पी के मैन्युफैक्चरिंग में लग जाएंगे। इसका मतलब पी के पूरे 2500 यूनिट्स हम नॉर्मल आवर्स में ही बना सकते हैं। पी के जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल डिमांड 2500 यूनिट्स, वो पूरे नॉर्मल आवर्स में बनाएंगे। सो वील प्रोड्यूस 2500 यूनिट्स ऑफ पी इन नॉर्मल आवर्स। दोनों डिपार्टमेंट में नॉर्मल आवर्स है। यहां पर हमने कंज्यूम कर लिए 250 आवर्स, यहां पर हमने कंज्यूम कर लिए 500 आवर्स। अवेलेबल थे 600 प्लस 300 और इधर अवेलेबल थे 520 प्लस 260 नॉर्मल प्लस ओवर टाइम। अब क्या है हमारे पास? अभी डिपार्टमेंट ए में 600 में से 250 नॉर्मल आवर्स यूज हुए हैं तो 350 नॉर्मल आवर्स बाकी हैं। डिपार्टमेंट बी में 520 में से 500 नॉर्मल आवर्स यूज हो गए, सिर्फ 20 नॉर्मल आवर्स बाकी हैं। पी का प्रोडक्शन खत्म हो गया, अब हमें क्यू ही प्रोड्यूस करना है। क्यू को नॉर्मल टाइम जब अवेलेबल है आपके पास दोनों डिपार्टमेंट में तो हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। बाय करने से बेटर है क्यू को आप प्रोड्यूस करो जब दोनों ही डिपार्टमेंट नॉर्मल टाइम में काम कर रहे हैं, तब क्यू आपको सेविंग्स दे रहा है 1.6। ओके, सो वी विल प्रोड्यूस क्यू। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्या हुआ विराज? हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस फॉर क्यू? दैट वील हैव टू फाइंड आउट। इसके तो अभी 350 आवर्स अवेलेबल है, इसमें सिर्फ 20 नॉर्मल आवर्स अवेलेबल है।
20 नॉर्मल आवर्स में Q के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं फॉर डिपार्टमेंट बी? डिपार्टमेंट बी में Q को प्रोड्यूस करने में 12 मिनट लगते हैं. आपके पास है टोटल 20 आवर्स, दैट इज 20 इंटू 60 मिनट्स अवेलेबल. टोटल 100 यूनिट्स आप बना सकते हो. सो वील प्रोड्यूस 100 यूनिट्स. 100 कहाँ से आया? सो यू मस्ट हैव डन 20 इंटू 60 डिवाइड बाई 12. प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ Q इन अगेन नॉर्मल टाइम. नॉर्मल आवर्स में प्रोड्यूस करेंगे. इसके 20 आवर्स हमने यूज कर लिए. इसके कितने घंटे यूज हुए? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो 18 आवर्स. एक यूनिट में 18 मिनट्स लग रहा है ना. अच्छा, मिनट सही है. सो इट विल बी 18 इंटू 100 डिवाइड बाई 60, 30 आवर्स. 30 आवर्स हमने पी के यूज कर, ए डिपार्टमेंट ए के यूज करे, 20 बी के यूज करे. अभी भी डिपार्टमेंट ए में आउट ऑफ 600 हमने 280 नॉर्मल आवर्स यूज करे. वी स्टिल हैव 320 नॉर्मल आवर्स लेफ्ट. जबकि डिपार्टमेंट बी में पूरे 520 नॉर्मल आवर्स खत्म हो गए. सो नाउ वी हैव कम टू ओवर टाइम ऑफ डिपार्टमेंट बी. जब एक ही डिपार्टमेंट का ओवर टाइम होगा तो हमें क्यों मैन्युफैक्चर करना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए. मैन्युफैक्चर करना इज मोर बेनिफिशियल. सो नाउ वी विल अगेन प्रोड्यूस Q. अब कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे Q के, तो फाइंड करो. यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है नॉर्मल आवर्स में 320 आवर्स. 320 में आप कितने यूनिट्स बना सकते हो? और यहाँ पर आपके पास ओवर टाइम 260 आवर्स अवेलेबल है. उस 260 में आप कितने यूनिट्स बना सकते हो? Q को बनाने में डिपार्टमेंट A में लगते हैं 18 मिनट्स. तो टोटल 320 आवर्स में कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं? 320 इंटू 60 अपॉन 18, कितना? 1067 यूनिट्स. इतने बनाए जा सकते हैं Q के एज पर डिपार्टमेंट ए के नॉर्मल आवर्स. डिपार्टमेंट ए के नॉर्मल आवर्स में इतने यूनिट्स बना सकते हैं. और डिपार्टमेंट बी के ओवर टाइम में, तो डिपार्टमेंट बी का ओवर टाइम है 260 आवर्स का. और Q का एक यूनिट बनाने में बी में लगते हैं 12 मिनट्स. तो यहाँ पर कितने बना सकते हैं हम? 1300. एक डिपार्टमेंट में जब तक ओवर टाइम चलता रहेगा हम मैन्युफैक्चर करते रहेंगे. 1067 यूनिट जैसे ही आप बना लोगे डिपार्टमेंट ए में भी ओवर टाइम हो जाएगा. बी में तो चल ही रहा है, ए में भी ओवर टाइम हो जाएगा. फिर मैन्युफैक्चर हमें रोक देना चाहिए. 320 इज द बैलेंस नॉर्मल आवर्स अवेलेबल. 320 आवर्स मतलब 320 इंटू 60 मिनट्स. और एक यूनिट बनाने में 18 मिनट्स लगते हैं. तो इतने मिनट्स में कितने यूनिट बनेंगे? जैसे ही 1067 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा आपका, इसके नॉर्मल आवर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे. देन यू विल एंड अप टू ओवर टाइम ऑफ ए ऑल्सो. ऑल्दो यहाँ पर आपके और भी कैपेसिटी बाकी है ओवर टाइम में, पर आपका अब ए में भी ओवर टाइम हो गया, बी में भी ओवर टाइम हो गया. और हम देख चुके हैं कि उस केस में हमें प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए. दैट मीन्स नाउ वी विल मेक ओनली 1067 यूनिट्स. This is lower of units of Q in normal time of A and overtime of B.